So yesterday we started with the new chapter, crop production and management. Okay, so what are agriculture practices? Okay, what are agriculture implements, whatever the things that are used in the agriculture we will be discussing in this chapter. ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? Importance of food we have discussed. Okay, so after the importance of food, what are crops? Okay, crop production क्या है ये हमने पढ़ा. अब उसके बाद based on the cropping patterns we have divided our crops into two types. ठीक है, so whatever the types of crops we have two basic category of that. So rabi crops, and the second one we did yesterday was kharif crops. Okay, तो ये one of the common difference है इस question में, इस chapter में. बहुत frequently ये जो है question पूछ लेते हैं that what do you mean by rabi crops, what do you mean by kharif crops, you have to give examples of both. Okay, right? So kharif crops हमने कल पढ़ लिया था, मैंने आपसे पूछा था that which season is going on, which month is going on. Okay, so this month is for the kharif crops, right? Because they are grown in which season? They are grown in summer and rainy season. ठीक है जी, हम इनको समर या रेनी सीजन्स में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. मंथ कौन सा है? जून टू जुलाई. ओके, so they are grown in this particular season and they are harvested. हम इनको हार्वेस्ट कब करते हैं? जब क्रॉप्स पूरे हो जाते हैं, अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, तो हम इनको हार्वेस्ट करते हैं at the end of monsoon, and that is September to October, right? तो आपको पता है ये मॉनसूनल मंथ्स हैं. ठीक है, तो ये मॉनसूनल मंथ्स में हम इनको क्या करते हैं? हम इनको ग्रो करते हैं and they are harvested at the end of the monsoon season, that is September to October. Okay, right? So they also depend on monsoonal rains. Right, क्योंकि since they need a lot of water for their production, so that's why they depend on the monsoon rain, okay, for their growth. So here the example of our rice, or you can say paddy, right? Maize, soyabean, groundnut, cotton. Okay, so these all are the kharif crops. Rice, cotton, maize, groundnut, soyabean. Okay, so they all are kharif crops. तो ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, जिसमें हमने एक ये भी क्वेश्चन किया था कि पैडी और सोयाबीन को हम क्यों विंटर सीजन्स में ग्रो नहीं करवाते हैं, राइट? सो द रीजन इज दैट दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर एंड द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वाटर इज फुलफिल्ड बाय द मॉनसूनल रेन्स. ओके, तो जो मॉनसून की रेन्स है वो उसका वाटर का जो उसकी नीड है उसको फुलफिल कर देते हैं. ओके, एंड टू द ऑपोजिट ऑफ दिस, खरीफ क्रॉप्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं रबी क्रॉप्स. तो यानी कि अगर खरीफ क्रॉप्स हम समर में ग्रो कर रहे हैं तो रबी क्रॉप्स हम कहाँ ग्रो करेंगे? सो द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दी विंटर सीजन, राइट? तो ये हम विंटर सीजन्स में क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं. ओके, सो दे आर ग्रोन एट द बिगिनिंग. ओके, नॉर्मली हम विंटर जो है वो कौन से मंथ में लेके चलते हैं? दैट इज फॉर द अक्टूबर टू नवंबर. ओके,
यानी कि हम इनको अक्टूबर से नवंबर में ग्रो करवाते हैं एंड दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल फॉर द रबी क्रॉप्स यू कैन गिव अप्रैल में। अप्रैल में हम किसको हार्वेस्ट करते हैं? wheat, ठीक है। तो you can basically remind this thing or you can learn this thing that the wheat is basically a rabi crop which is harvested at the end of the April season. wheat, gram इसकी examples हैं। pea, linseed, okay, wheat, gram, pea, linseed, mustard, मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, ओके, मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, राइट। ये भी सीड्स हैं बेटा, आरिश, दे आर आल्सो सीड्स। एंड अलॉन्ग विद दिस पल्सेस और वेजिटेबल्स तो ग्रो होती ही हैं समर सीजन में, ठीक है। pulses also you can include in the rabi crops. Pulses and other vegetables, they are also grown at the summer season, okay. Clear, right? तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप इज आई गेस क्लियर टू यू। इनके सो करने, इनके ग्रो करने का जो सीजन है वो विंटर है, इनका समर है और रेनी सीजन है, ओके। इनको हार्वेस्ट हम करते हैं एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन, ठीक है। सो दिस इज मार्च एंड अप्रैल, इसमें हम हार्वेस्ट करते हैं। इनको हार्वेस्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ मानसून, दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, ओके। ये जो है वो मानसूनल रेंज पे डिपेंड करते हैं खरीफ क्रॉप्स, बट रबी क्रॉप्स दे डोंट डिपेंड ऑन दी मानसूनल रेंज, क्योंकि इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, इसलिए ये मानसूनल रेंज पे डिपेंड नहीं करते हैं, ओके। Example of rabi crops are wheat, gram, pea, linseed, mustard, and for the kharif crops, rye, cotton, maize, groundnut, soyabean. ओके, खरीफ हमने कल कर लिया इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हैं उसकी। राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ओके, ठीक है। तो इनका ग्रोइंग टाइम, इनका हार्वेस्टिंग टाइम ये आपने याद रखना है, इनकी वन एग्जाम्पल, एंड मॉनसूनल रेंज किस पे डिपेंड करती हैं, कौन जो है वो मॉनसूनल रेंज पे डिपेंड करते हैं और कौन नहीं करते हैं। So I guess you are having enough time, enough points of differences between them. Okay, right? So coming to the next part now. अब हमने अपने क्रॉप्स देख लिए हैं कि हम कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो किस सीजन में ग्रो करवाएंगे, ओके। सो अब ग्रो करवाने के लिए कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी तो एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी। ऐसे थोड़ी ना होगा कि अकुल ने सोचा चलो आज वीट क्रॉप लगाते हैं, वीट क्रॉप ग्रो करते हैं, ओके, और अकुल के सोचने से ही जो वीट क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे। नो, दिस विल नॉट हैपन, राइट। अकुल हैज टू डू सम एफर्ट्स इन ऑर्डर टू ग्रो दैट प्लांट, right? So whatever efforts, whatever activities Akul is going to do, like other farmers, they are also doing, okay, for their harvest, right? So they are known as agriculture practices, right? So for the cultivation of any crop, so cultivation of the crops, they include some activities that are undertaken by the farmer
ओके तो ये एक्टिविटीज जो है वो सारी कौन करता है? फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जो आपका क्रॉप है वो एक दिन में ग्रो नहीं कर जाएगा, इट विल नीड सेवरल मंथ्स, ओके, सो इट नीड सम टाइम, okay, so that's why I have written that the farmer, he has to continuously do that practices for a limited period of time, for a certain period of time, okay. So why he is doing these activities? To cultivate the good crop, right, ताकि जो उसके क्रॉप्स हैं वो अच्छे कल्टीवेट हों, राइट, गुड क्वालिटी के कल्टीवेट हों. So that's why whatever activities the farmer or whatever activities you will be doing in order to get a good crop, that activities are the agricultural practices, okay. हाँ जी ठीक है. So these activities are called agricultural practices. So we call these activities as agricultural practices. Now 6 activities we include in this. ठीक है, कोई भी आपने क्रॉप जो है वो ग्रो करवाना है तो उसके लिए आपको 6 से 7 एक्टिविटीज जो हैं वो चाहिए. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, शैल आई रब इट? हाँ जी बेटा, रब कर दो इसको. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. पहले हमने जिसमें क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करवाने हैं उसको तो अच्छे से प्रिपेयर करें, ओके. एंड दिस आल्सो इंक्लूड 2 फर्दर स्टेप्स, प्लोइंग, that is also called tilling, and the second is leveling. The second is leveling. सेकेंड, अब हमने सबसे पहले जो अपनी सॉइल है उसको प्रिपेयर कर लिया हुआ है. अब हम सॉइल में सीड्स जो हैं वो सो करेंगे, ओके. सो हमें सीड्स अच्छी क्वालिटी के सिलेक्ट करवाने हैं और सो करवाने हैं, ओके. सो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. Third is replenishment of nutrients back to the soil. मैन्योरिंग, ये मैन्योरिंग का प्रोसेस हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं. जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं हम तब भी मैन्योर्स डाल सकते हैं, हम बाद में भी मैन्योर्स ऐड कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड 6 to 7 स्टेप्स होते हैं. अगर आप ये स्टेप पहले कर लोगे तो 6 स्टेप्स रह जाएंगे, ओके. तो जब आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो तब भी मैन्योरिंग कर सकते हो उसके साथ साथ. नेक्स्ट इज irrigation practices we have to do now. ठीक है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस में हम पानी देंगे अपने क्रॉप्स को, राइट. सो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करवाएंगे या प्रिपेयर करवाएंगे, ओके. सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग सम मेथड्स ऑफ प्लोइंग, टिलिंग, लेवलिंग, राइट. फिर उसके बाद हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए. उसके बाद हमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बैक देने हैं सारे. फिर इरिगेशन, वी विल बी वाटरिंग आवर क्रॉप्स टाइम टू टाइम, ओके. फिर उसके बाद जब हमारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे तो हमें उनको प्रोटेक्ट भी तो करना है.
So the next is crop protection. We will be protecting our crops from insecticides, weedicides, ठीक है, तो हमें उनसे बचाना पड़ेगा उनको. Sixth step. Now it's the time to harvest our crops. ठीक है, अब हमारे crops अच्छे से grow हो गए हैं, right? तो we will be harvesting them now. Okay? तो हार्वेस्टिंग के बाद अब हमारे पास जो हमारे क्रॉप्स हैं, सीड्स हैं, वो आ चुके हैं. ओके, जैसे वीट क्रॉप आ गए हैं हमारे पास. ओके, तो अब हमें उनको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टोर देम. सो स्टोरेज इज आल्सो अ ह्यूज कंसर्न व्हेन वी आर डीलिंग विद सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. Sameer, can you focus on the board, please? Okay, so when we are dealing with a large production of crops, then storage is also a very much concern. कि हमने उनको स्टोर कैसे करना है ताकि वहां पर भी जो है वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, हमने उनसे बचा के रखना है. So let's move to the first one, that is the preparation of soil. Let's prepare our soil so that it can be very fit for growing of the crops. Okay, so this is the first step that is involved in crop growing. Okay, अब इस स्टेप का क्या यूज है? That is used for loosening of the soil. ठीक है, हमने अपनी सॉइल को क्या करवाना है? लूजनिंग करनी है, उसकी लूज करवाना है. ओके, कुछ नहीं करना है, बस अपनी सॉइल को आपने ऊपर नीचे जो है वो करना है, यानी कि जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली सॉइल जो है वो नीचे वाले के साथ मिक्स हो जाए. ठीक है, तो आपने अपनी सॉइल को हिलाना है थोड़ा सा, उसके बीच में एयर स्पेसेस को इंक्रीज करवाना है और उसकी टर्निंग करनी है. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो लूजिंग में हमने उसके बीच में जो एयर स्पेसेस है वो इंक्रीज करनी है और टर्निंग में उसको टर्न करना है. जस्ट सिंपली नीचे वाली ऊपर, साइड वाली, ऐसे ऐसे आपने उसको टर्न करवाना है. ओके, एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स फर्दर टू स्टेप्स, फ्लोइंग एंड लेवलिंग. ओके, फ्लोइंग जिसको हम टिलिंग भी कहते हैं, एंड द सेकंड इज लेवलिंग. सो बेसिकली फ्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. ठीक है, हम ये लूजनिंग एंड टर्निंग जो है वो किसमें करते हैं? दैट इज इंक्लूडेड इन द फ्लोइंग पार्ट. ओके, एंड फ्लोइंग जो है उसके लिए देखो, कुछ भी हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है, हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी तो चाहिए, एग्रीकल्चरल टूल्स भी चाहिए. ठीक है, so whatever tools we are using in our agricultural practices, that will be agricultural implements. Okay, so agricultural implements क्या होते हैं? जो भी हम tools use कर रहे हैं agriculture में. Okay, so the various tools that are needed during the agricultural practices, we called them as agricultural implements. जैसे normally we talk about plow, wheel and cultivators. Plow, wheel and cultivators. Okay, so these tools we will be discussing now, plow, wheel and cultivators. Right? हाँ जी, ठीक है बेटा. चलिए सबसे पहले हम प्लो की बात कर लेते हैं. प्लोइंग के लिए वी विल बी यूजिंग अ प्लो. आप सबने प्लो देखा हुआ है. यस, हाउ इट लुक्स लाइक? हाँ जी बेटा, कैसा होता है प्लो? You all have seen the plow. Yes, pointed at one end. और
आपने देखा होगा कि जो बुल्स हैं, ठीक है, उनकी बैक पे एक वुडन प्लैंक रखा होता है और जो फार्मर्स है वो उनको उस पे लैंड पे फील्ड पे जो है वो आगे के आगे चलाते हैं ना, यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल्ड एज फ्लो। ओके, जिसमें एक फ्लो शाफ्ट होता है और एक फ्लो शेयर होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लो फर्स्टली। तो फ्लो जो है वो एग्रीकल्चरल टूल है दैट वी यूज इन द केस ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, फ्लोइंग यानी कि टिलिंग करनी है, हमने स्क्रैपिंग करनी है, मैन्योरिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमने अपनी सॉइल को मैन्योर्स डालने हैं। ठीक है, तो उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मैन्योरिंग में, वीडिंग में। ओके, तो सॉइल की टिलिंग, स्क्रैपिंग, मैन्योरिंग, वीडिंग में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, इसके दो पार्ट्स होते हैं, फ्लो शेयर and the second is flow shaft. The first part is flow shear and the second part is flow shaft. Okay, सबसे पहले फ्लो शेयर देखते हैं। फ्लो शेयर क्या होता है? ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में, हाँ जी बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, आयरन की एक स्ट्रिप होती है। ओके, so this is a strong triangular iron strip and flow shaft। फ्लो शाफ्ट जो है वो वुड की रॉड होती है, जिसको हम प्लैंक भी बोल देते हैं। वी कॉल दिस एज प्लैंक ऑल्सो। ओके, सो लेट मी शो यू नाउ कि कैसा होता है फ्लो शेयर। So just a minute. Okay, see how it looks like, right? So can you see the triangular part? That is the flow shear. ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, वुडन का ट्रायंगुलर पार्ट है, उसको हम फ्लो शेयर कहते हैं। और जो एक वुडन प्लैंक है, लंबा सा बीम जो है, ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो शाफ्ट। इसका एक हैंडल होता है, ओके, एंड जो बीम बनी हुई है दैट इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ओके, द बीम इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ जिसमें देखिए, सी, हाँ जी बेटा देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने दो यूज किए हुए हैं बेसिकली फ्लो। ओके, तो एक जो है वो ऊपर हैंडल बना हुआ है उसका, यू कैन सी, हैंडल के बाद जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो उसके अंदर है, सॉइल के अंदर, एंड द बीम पार्ट इज कॉल्ड फ्लो शाफ्ट। ओके, तो जो लंबा वुडन प्लैंक है वो फ्लो शाफ्ट है। आप देख सकते हो बुल्स के नेक पे रखा हुआ है, दैट इज द बीम, चौड़ा सा। ओके, तो हैंडल आपको बाहर नजर आ रहा है, जो आयरन का पार्ट है वो अंदर होगा सॉइल के। ओके, क्लियर बेटा? So this is how the flow it looks like. तो फ्लो शेयर जो है वो ट्रायंगुलर आयरन पीस है, फ्लो शाफ्ट जो है वो वुडन का लॉन्ग रॉड है। So in the ancient time or in the past times, this method, this flow, it was used. Manual method था ये। This is the manual method actually. ठीक है, बट अभी हम फ्लोइंग जो है we can use that with the help of tractor also. ठीक है, बुल्स या बुफेलोज या काउस की जगह हम उसको क्या यूज कर सकते हैं, अब हम ट्रैक्टर्स यूज कर सकते हैं उनकी जगह।
ठीक है. So whenever we are using tractor in order to do the plowing, then we use tractor and this process is known as cultivator. ओके तो अब हम मशीन्स जो हैं वो यूज करते हैं, कल्टीवेटर मशीन यूज करते हैं. ओके ट्रैक्टर ड्रिवन फ्लो आर कॉल्ड कल्टीवेटर्स. ट्रैक्टर ड्रिवन राइट. तो ये आपका टाइम भी सेव करता है, एनर्जी भी सेव करता है. ठीक है एंड इजी है. This saves your time, energy, and this method is easy to use. Okay. So ये टेक्नोलॉजिकल मेथड है और ये मैनुअल मेथड है. मैनुअल मीन्स हाथ से. ठीक है और टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर. Now why we want to lose our soil? हमें अपनी सॉइल को लूज करवाने की क्या जरूरत है? What is the need of that? Okay. So now we will be discussing the importance of losing of soil. Anji, what do you think is the need? Yes, to have more air spaces, right, Karanya? Or to have more air spaces. Okay. So air spaces ज़्यादा होने से क्या होगा? जो roots हैं उस crop की, they will breathe better. Okay. So that root of the crop will breathe better. हाँ जी. What other thing? एक पॉइंट तो रन्या ने बताया, बाकी बेटा it allows that we have done Ananya roots to breathe better. और अगर एयर स्पेसेस बढ़ रही हैं तो that means it will also help the plant to hold more water. Okay, so this will help the soil particles to hold more water for longer duration. Rest we will be doing tomorrow. Okay, so find out some more points that why the loosening of the soil is important. Okay.